अरे अरे, डमडम और डमडो, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या हुआ है? अच्छा अच्छा, रुको, मैं तुम दोनों का मसला हल कराती हूँ। अच्छा जी, तो रौला ये है कि डमडम और डमडो इस बात पे लड़ रहे हैं कि हु इज द बेटर हंटर। एक कहता है कि उसने ज्यादा मछलियां पकड़ी हैं, दूसरा कहता है कि उसने ज्यादा पकड़ी हैं। Now the problem is कि at this point in history numbers invent ही नहीं हुए थे, तो इनके पास कोई तरीका ही नहीं था कि ये ट्रैक रख सकें कि who killed more. What you are witnessing right now is the birth of numbers. तारीख का वो लम्हा जब इंसान ने पहली दफा नंबर्स की जरूरत महसूस की and came up with a simple method to count things. एक ऐसा मेथड जो मोस्ट प्रोबेबली आपने भी बचपन में यूज किया हो। अंग्रेजी में बोले तो टैलीज, देसी जुबान में बोले तो तीली काटा। बेसिकली एवरी टाइम डम डम या डमडो कैच अ फिश, दे मेक अ मार्क ऑन द टैबलेट और फिर यू कैन जस्ट ऐड द नंबर्स ऑफ मार्क्स। सो 50 tally marks here represent the number 50. Simple. Problem solved मेरे भाइयों। लो जी, क्या बात है आपकी बहन की, छा गई ना फिर। चलो फिर we'll visit them again after a few months to see कि आखिर कौन है बड़ा शिकारी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? तुम्हारा मसला तो सॉल्व नहीं हो गया था। ऑफ कोर्स, जैसे आप देख सकते हैं ये टैलिंग कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। एक पॉइंट के बाद द नंबर्स बिकम टू ह्यूज। आई मीन कुल 100 टैबलेट्स लगे हैं टू रिप्रेजेंट द नंबर 1200। ये तो टेंशन सीन है। सो फॉर द नेक्स्ट 10,000 years or so, डिफरेंट सिविलाइजेशंस इस टेंशन को कम करने के लिए तरीके ढूंढती रही एंड kept trying to improve the system. Egyptians were the first ones to suggest something much better. They used the system of symbols to represent bigger numbers. so this circly rope symbol for 100 and the flower symbol for 1,000. And you add up these symbols to get the numbers. So for example, look at these symbols. Rope, rope, flower. The circly rope is 100 and the flower is 1,000. So this is basically 100, 100 and 1,000 and adding them up to 1200. So just these three symbols represent the number 1200. So much better than the hundreds of tablets needed in the previous system, है ना? ये काफी बड़ी improvement थी, पर अभी भी numbers बहुत बड़े हो जाते थे। For example, this is the number 1900 in this system. Not cool, है ना? इतने छोटे नंबर के लिए इतने ज्यादा सिंबल्स। इस सिस्टम को यूज करते बंदा बूढ़ा ही हो जाए। So a few hundred years later came the Romans and introduced an improved system जिससे आप most probably familiar हैं। 6, 7, 8 and so on. In this system कुछ ऐसे rules यूज किए गए हैं जिसकी वजह से you can now write numbers like 1900 with 3 digits, MCM instead of the long one in the previous Egyptian system. Much better, but unfortunately still not perfect because इस system में भी numbers weirdly बड़े हो जाते थे. Here's an example. He just asked for LXXXVIII carats. That's 88 carats. शुक्र करें आप रोमन टाइम में पैदा नहीं हुए, वरना आधी उम्र तो अम्मी की सब्जियां लाने में ही गुजर जाती। From this point, it took a few hundred years more until finally the grand moment came. जो 10,000 साल दुनिया की कोई सिविलाइजेशन नहीं कर सकी, वो इंडियन और अरेबिक मैथमेटिशियंस ने कर दिखाया। They finally invented the beautifully simple and powerful number system we use today. In this system, just 10 digits 0 to 9 can be used to represent any number. So for example, जहाँ Roman numerals में you needed LXXXXVIII to write 88, in this system you can just write 88, यानी 88.
सो क्या था इस सिस्टम में जो पिछलों में नहीं था? Well, this system has a clever trick. The idea of positions or places. Something जो आप पिछले grades में देख चुके होंगे. Basically, this system uses positions of the digits to make up different numbers. यानी हर digit has a value based on its positions. Ones, tens, hundreds, thousands and so on. So in this system, the number like 1200 जो एक ज़माने में कई 100 टैबलेट्स पर लिखा जाता था can simply be written as 1, 2, 0, 0. Now मेरे अजीज बहनों और भाइयों, let's pause for a second and think about the long history of numbers we just saw. आज इस सिस्टम को दूध पीते बच्चे भी यूज कर लेते हैं. अच्छा, मे बी नॉट दूध पीते बच्चे. आपकी बहन जरा कभी कभी जोश में आकर आगे चली जाती है, बट बात की फील गलत नहीं थी, है ना? ये वाकई एक बहुत सिंपल सिस्टम है, लेकिन इस सिंपलिसिटी के पीछे 10,000 सालों की मेहनत है. जनरेशन अपॉन जनरेशन, सिविलाइजेशन आफ्टर सिविलाइजेशन की कलेक्टिव एफर्ट का नतीजा है ये नंबर सिस्टम. तो प्लीज़ इन बेचारों की थोड़ी तो रिस्पेक्ट बनती है ना फिर. और ये रिस्पेक्ट सिर्फ इस वजह से नहीं है कि इनको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बल्कि इसलिए कि these 10 numbers are the keys to some of the biggest secrets of the universe. इन कीज को यूज करते साइंटिस्ट ने मैथ की पावर्स अनलॉक की हैं. और इन पावर्स से बना एक मैथ जीनी, एक ऐसा जीनी जिसने ना हमें सिर्फ ये समझाया कि यूनिवर्स कैसे चलती है, बल्कि ये भी सिखाया कि इसे कंट्रोल कैसे करना है. And once we started controlling and understanding the universe, we started building and doing amazing things. आपकी सेल्फी से लेकर स्पेस रॉकेट्स तक, टाइनी पार्टिकल्स की मूवमेंट से लेकर गैलेक्सी की फॉर्मेशन तक, मैथ्स का जीनी इज एवरीवेयर. And none of this would have been possible without these मासूम से देखने वाले सिंपल नंबर्स और इनसे मिलने वाली मैथ्स की पावर्स. लेकिन वेट, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, सारा क्रेडिट सिर्फ इन 10 नंबरों को नहीं जाता. You see, जब मैथमेटिशियंस ने इन नंबर्स को जरा और गौर से स्टडी किया तो दे रियलाइज टू देयर अमेजमेंट कि यहाँ तो मैथ्स के नंबर्स की पूरी एक दुनिया छुपी बैठी है. एज इट हैपन्स, इन नंबर्स के तो बहुत सारे बहन भाई, कजन, मामे, चाचे, ताए वगैरह भी हैं. इन अदर वर्ड्स, इन नंबर्स की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैं. ईच फैमिली हैज इट्स ओन यूनिक पावर दैट इट कैन गिफ्ट अस. पर नंबर्स के इस खानदान को हम जरा अभी रेस्ट करने देते हैं और इनसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में.